friends. Today we are going to begin with section 2. There the first poem is Song of the Open Road. As we know, we have dealt with the lesson in my earlier videos and now we will continue with some poems. The first poem is Song of the Open Road. This is a very famous poem written by Walt Whitman. Before we begin the poem, let's see the icebreakers. Choose the mode of travel that you would like the most for a journey. The options are given here. They are airways, waterways, railways, roadways. You can use any one. For example, if I choose the airways, I am supposed to give the reasons, 3 reasons that I am expected to give here. We can give here that it takes less time to travel. Then we can give that it is a hassle-free and time-saving journey. Again, we can give the reason that when the time matters for us, the time that we save, we can use it for the other work to be accomplished. Again, we can give the reason that airways is my favorite mode of journey because with airways, with the plane that I travel, I really enjoy it and I like to see the wide open sky while making the travel. Okay, the same way we can say that railways is my favorite one, and there also you can give the reasons that railways is the most affordable mode of journey. Again, with the railways it is safe and sound. Again, it is one of the fast mode after airways. Again, we can say that the various type of means by AC or again by the sleeper class we can travel, and so our journey is also a very comfortable one. In this way we can give the reasons. Then the next activity, discuss with your partner the preparations you would like to make for the journey chosen. So what type of preparations that we make? When we want to go somewhere at a time, we make a list first. What things are very important for us, what things that we should not forget. So for example, we take all the things which are required as our dresses, or again our the things that we require every day to get fresh, to look beautiful. Again, here we take the medicines also. So everything that the things are supposed to be necessary that we take along with us. Okay. Then next activity, discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. Here I would say that the different type of problems that sometimes we have to face. For example, we get stranded at a place, we cannot move from that place. Sometimes the accident that would take place. In such a situation, we have to overcome those problems. We need to call or get the help from the local people sometimes. We need to call our near or the relatives people also. Okay. Again, if we have some healthcare problem at that time, we need to take help of the doctors. Okay. So such type of problems are there and we need to overcome them also. Then during every journey, we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restrictions. You can begin like this. I would go alone with selected friends, etc. So again we can add here that while we are on a journey at that time, we can plan first of all, or again without planning also, the road wherever it will take, we will go there. Again we will just enjoy that place also. Okay, so in this way we can write here, because it is about the without restriction. Again here we can write that
that the things which I was supposed to do, that I would do. Means I have a long time dream to do some of the thing and I could not, or again wanted to visit some place, travel in a jungle, or again travel in the sense to wander in a jungle, or again here we can say that I want to enjoy the water sport and I haven't been there. So such type of long cherished dreams would be there, and again we get the golden opportunity to fulfill them. So here in this way we can write there. Now let us begin, friends, with the poem written by Walt Whitman. Here Walt Whitman, here we can see that he is a very famous American poet. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse. Friends, there is a free verse and blank verse, and a blank verse is different from free verse. In the next activities or the activities which are given at the end of the poem, there I will explain you what is the difference in free verse and blank verse. But here about Walt Whitman, he is a very famous American poet and he has talked about the American people particularly. He was very famous because of his simplicity of language and as well as the kind of topics that he had chosen. He grew up in Huntington in a family with difficult economic status. यानी यहाँ पे वॉल्ट विटमन जो है उनके जो शुरुआती दिन जो है वो एक गरीबी में गए. उसके बाद में हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास, ये उनका पहला वॉल्यूम था. लीव्स ऑफ ग्रास, इट वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855. मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊं कि इस लीव्स ऑफ ग्रास में सिर्फ 12 पोएम थी और शुरुआती पहले वॉल्यूम में, और उसके बाद में फिर वहाँ पे उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा था, रिटन बाय वो नहीं था. उसके बाद में फिर उसके वॉल्यूम्स आते गए और उसमें पोएम बढ़ती गई और उसके बाद में वो फेमस भी होते गए. हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन is a poem written on the death of Abraham Lincoln is widely popular. So on the death of Abraham Lincoln, he has written that poem and it has become popular at a time. The section 1 of Song of the Open Road from Leaves of Grass. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि Leaves of Grass में बहुत सारे sections है. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, ये एक किताब है जहाँ पे बहुत सारी पोएम है और उनके अलग अलग टॉपिक है. इसी तरह से यहाँ पे लीव्स ऑफ ग्रास में भी अलग अलग टॉपिक है और उसमें से एक पर्टिकुलर लाइंस, कुछ लाइंस जो है चुनिंदा, वो हमें यहाँ पे पढ़ाई के लिए दी हुई है और उनको टाइटल दी हुई है जो एक रोड के ऊपर बेस है, तो इनको नाम दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. It gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि पोएट का रियलाइजेशन जो है लाइफ की जर्नी के बारे में, वो रियलाइजेशन वो बियॉन्ड स्कूल है. यानी स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है वो एक बुकिश नॉलेज होता है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें उस लाइफ पे या फिर उस पाथ पे जाने के बाद में ही पता चलता है. सो अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस वेयर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. यानी यहाँ पे रोड जो होता है वो सभी लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन भी होता है. और यहाँ पे वो बोलते हैं कि द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. रोड जो होता है वो मूविंग होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. और आगे कहते हैं वो वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू. यानी कोई नई कमेंसमेंट आपको करनी है, नई बिगिनिंग अगर आपने आपके ज़िंदगी में आपको करनी है,
तो उस टाइम में भी आप इस रोड से कर सकते हो. सो रोड इज अ symbolic one that is used in the poem. The road symbolizes freedom. The road symbolizes the self awareness. It is about the inner instinct that you have to choose. ठीक है. आगे और एक लाइन है. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. यहाँ पे वो एक आर्ग्यू करते हैं कि बोले staying at one place is for a too long period of time that is also not actually accepted by Walt Whitman. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि the poem is with great inspiration. The poem has the inspiration for all the people who wanted to make a new beginning in their life. मित्रांनो, या कवितेमध्ये तुम्हाला एक खूप प्रेरणादायी किंवा ज्या लोकांनी स्वतःच्या आयुष्यामध्ये एक नैराश्य आलेलं आहे त्या लोकांना नवीन प्रेरणा देणारी ही कविता आहे. सो दिस पोएम will give you a lot of inspiration and we need to learn a lot from this. Here, let us begin with the poem. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. The poet is saying that he is ऑन अ फुट, यानी वो पैदल विदाउट किसी व्हीकल वो चल रहे हैं. और यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो जब निकल पड़े तो वो एक लाइट हार्टेड है, यानी एकदम एक खुशनुमा इन्वायरमेंट में लाइट हार्टेड है, किसी भी प्रकार का बर्डन न रखते हुए दिल पे. आई टेक टू द ओपन रोड. ये ओपन रोड जो है वो एक सिंबॉलिक है, ये एक विदाउट डेस्टिनी वाला एक रोड है. और आगे कहते हैं वो कि हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. और उनके आगे जो दुनिया जो है वो कैसी है? हेल्दी है, प्रॉस्परस है, फ्री है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन है. और ये वर्ल्ड, ये पूरा रोड जो है वो ऐसे दुनिया को उनको लेके जाता है. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज. यहाँ पे ब्राउन कलर जो यूज किया हुआ है दैट इज ऑल्सो सिम्बॉलिक. ब्राउन कलर जो होता है वो एक तरह से एक जो टूरिस्ट लोग जो होते हैं, टूरिस्ट लोगों को डेस्टिनी जो होती है, तो इस डेस्टिनी के लिए ये बताया जाता है कि ब्राउन रोड जो होता है, ब्राउन या फिर कलर जो यूज़ होता है वो किसी पर्टिकुलर फेमस प्लेस के बारे में बताता है हमें. तो इसी तरह से ये लॉन्ग ब्राउन पाथ है, बोले इन्होंने तो इस रोड को ही कलरफुल बना दिया है, यानी एक स्पेशल है. और ये हमें कहाँ पे लीड करती है? तो जहाँ कहाँ हमें जाना है. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बार बोल दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियो आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं. साथ ही में कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती है. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट माय चैनल. आगे, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. यानी वो कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं खुद ही अपनी नसीब का मालिक हूँ, यानी मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ. अगर मुझ में गुडनेस है, अगर मुझ में पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैं अच्छी बातें अपने लाइफ में कर सकता हूँ. आगे कहते हैं कि एक नया वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. यानी वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इतने वो सेटिस्फाइड है, इतने वो कंटेंटेड है कि यहाँ पे एक तरह से उनकी कोई विम्पर नहीं है. विम्पर यानी यहाँ पे सैड क्राइज, या फिर जो एक बंदा जो होता है कि वो हमेशा कंप्लेंट करते रहता है, एक तरह से अपने जो चीज़ें उनको नहीं मिली उनके बारे में वो जैसे कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है, तो ऐसे लोगों के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ पे कि henceforth I whimper no more. यहाँ पे बार बार I का यूज़ किया हुआ है. I एक सिंबॉलिक है
सेल्फ के लिए, आई सिंबलाइज करता है अमेरिकन पर्सन के लिए, जो एकदम कॉमन से कॉमन अमेरिकन पर्सन है, उसके लाइफ का ये अकाउंट है, उसके लाइफ का ये एग्जाम्पल है। इसलिए ये यहाँ पे एक पोएम जो है वो अप्लीकेबल है सभी यूनिवर्स के लोगों के लिए, सभी के लिए, आप के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये पोएम अप्लीकेबल है। और इसीलिए वॉल्ट व्हिटमन की पोएम भी इतनी फेमस हुई। ये कहते हैं यहाँ पे कि हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, मुझे कोई किसी तरह से कोई शिकायत ही नहीं है। पोस्टपोन नो मोर, कोई चीज़ हम पोस्टपोन करते हैं, आज करने वाली चीज़ हम कल करेंगे, कल करने वाली परसों करेंगे, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। तो वो पोस्टपोन करना जो है वो मेरी आदत नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, यानी बोले आई हैव डन, डन यानी फिनिश्ड द इंडोर कंप्लेंट्स, द वट एवर द कंप्लेंट्स है, लाइब्रेरीज है, क्यूरलस क्रिटिसिज्म, क्यूरलस दैट इज कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो होता है, तो मैंने लोगों की बोले जो कुछ भी देना था, जो कुछ भी था उनका, वो सब मैंने पूरा कर दिया हूँ मैंने, मुझे अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल दी ओपन रोड, वो कहते हैं कि बोले आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम कंटेंटेड एंड दैट आई एम रेडी टू ट्रैवल हैंस फोर्थ, मैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी डेस्टिनी की तरफ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, और ये जो अर्थ जो है दैट इज ऑल्सो वेरी सफिशियंट फॉर मी, सो दिस अर्थ कैन फुलफिल माई नीड्स ऑल्सो। I do not want the constellations any nearer, यानी कंस्टिलेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है। आपने देखा होगा कि जो नेता लोग रहते हैं उनके पीछे पीछे घूमने वाले उनके कुछ लोग रहते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जो आसमान में चांद सितारे जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं। इसी तरह हमारे दुनिया में, रियल लाइफ में भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी फेट को, हमारी डेस्टिनी को एक तरह से वो कंट्रोल करते हैं। तो बोले मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे कुछ ऐसे सुपर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी नहीं चाहिए मुझे। सो आई डोंट वांट टू नियर देम, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। तो उनकी जो पब्लिसिटी जो है या फिर उनके जो भी कुछ फेमस जो हुए हैं वो अपने भरोसे हुए हैं। तो वाई शुड आई टेक हेल्प ऑफ देम, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वो जहाँ कहाँ भी है वो बहुत ही पावरफुल है। एंड आई नो अबाउट देम, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और जो जो कोई भी उनसे रिलेशन में है दे आर जस्ट सफिशियंट फॉर दोज आल्सो, फॉर देम आल्सो। एक बार फिर से पढ़ूंगा, आई नो दे सफिस, वो फुलफिल कर सकते हैं, सफिस करना यानी सेटिस्फाई करना, तो आई नो दे सेटिस्फाई फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बोले ये जो इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस वो बहुत ही ग्रेट है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है वो उन लोगों को गाइड करने के लिए सफिशिएंट है। और मैं जो हूँ वो ऐसे दूसरों के भरोसे नहीं जीऊँगा अपनी ज़िंदगी। आई विल ट्रोड माई ओन पाथ, आई विल गो थ्रू माई ओन पाथ, मैं अपनी खुद की राह खुद चुनूंगा और एक फ्री विल से अपनी दुनिया में जीऊँगा। तो यहाँ पे एक सेल्फ इंस्पिरेशनल पोएम है, एक तरह से सेल्फ में एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाने वाली ये पोएम है। आगे में जो पार्ट हम देखने वाले हैं जो एक ब्रैकेट में होता है, तो इसे लिटरेचर की भाषा में पैरांथेसिस बोलते हैं इसे। तो ये पैरांथेसिस का एक पार्ट है, तो इस ब्रैकेट में भी वो एक मैसेज दे रहे हैं वो। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ध्यान में रखना है कि एक ओपन रोड है और पोएट को एक लॉन्ग जर्नी अपनी लाइफ में करनी है, जहाँ पे किसी तरह की उनको बाइंडिंग अलाउ नहीं है और वो फ्रीली अपनी दुनिया जीना चाहते। तो ऐसे में आगे में अभी एक पैरांथेसिस है और यहाँ पे वो कह रहे स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। एक थोड़ा सा ये यानी ये जो एक्सप्रेशन जो है वो एक कुछ इंट्रीग क्रिएट करता है ये। तो एक थोड़ा सा अपोजिट आइडियाज टाइप में है ये, और ये आइडिया जो लगती है थोड़ी सी सीमिंगली एब्सुर्ड लगती है, अनलाइकली लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे डेलीशियस नहीं हो सकते, बर्डन्स डेलीशियस नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे वो करे कि मेरे मेरे जो ओल्ड बर्डन्स है बोले वो डेलीशियस है। तो अभी बर्डन्स कौन से है,
वो आगे बता रहे हैं इनके बारे में, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। सो आई हैव माई मेन, आई हैव माई वुमेन, यानी बोले मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, और मैं उन सभी को, उनके प्रति मेरी कुछ जवाबदारी है, उन सभी को भी मैं अपने साथ में लेना चाहता हूँ। यानी आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। इसी तरह से ये बोले कि ये जो मेरे पीछे भी जो बर्डन है, यानी मेरी फैमिली को देखभाल करना, उनको केयर करना, these are the burdens, but these burdens are not actually worrying for me, but they are the delicious burdens and I willingly accept my burden. I swear यानी कसम खाना, तो I swear it is impossible for me to get rid of them. So it is not possible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. तो उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए पेन्स लिए है, तो मैं भी उन्हें इन रिटर्न में क्या दूंगा, उनको एक तरह से रिवार्ड में दूंगा, उनको इसी तरह से मैं रिटर्न में एक तरह से उनको भी मैं कुछ बख्शिश दूंगा। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ है, मुझे अपने खुद के दिल से जीना है, लेकिन मुझे मेरी जो जवाबदारी है उस जवाबदारी को मैं भूल नहीं सकता। सो आई विल सर्टेनली लुक आफ्टर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इवन दो ट्राई टू लिव माई लाइफ इन माई ओन वे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हर आदमी जो होता है, हर एक जने को एक तरह से कुछ जवाबदारियां होती है और उन जवाबदारी को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें कैरी आउट करना है। सो हियर द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओके, सो फ्रेंड्स वी विल स्टॉप हियर। जो कुछ भी बची हुई ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ है, साथ ही में अप्रिसिएशन का जो पोएम है उसको मैं एक सेपरेट वॉल्यूम में मैं लेने वाला हूँ, और ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ है और साथ ही में जो कुछ भी फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह जो है इनको भी मैं एक पूरे एक पार्ट में लेने वाला हूँ। तो ये पोएम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो इन दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन ओनली द एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू वांट एनी मोर हेल्प एंड गाइड, so please comment in the comment box, and please like, share and subscribe to my channel, Kashwa Sir Classes. Okay friends, thank you.